So when I started with this chapter, I told you that in this chapter we are going to study the actual concept of hello. Little louder. Yeah, okay, ma'am. So in this chapter we have studied the different theorems based on the triangles and how and the similar triangles. How to prove that the triangles are similar. And before that, before entering into the actual concept of similarity, we studied with the concept of areas of triangles. So यहाँ पे हमने areas of simple triangles की बात की थी और बाद में हम लोग ने areas of similar triangles की बात की थी. We also studied BPT theorem, that is basic proportionality theorem. So today we are going to revise all the contents of this chapter. Okay, so the very first important property of this chapter, similarity, that was ratio of areas of two triangles. Okay, it is ratio of areas of two triangles. कि सिर्फ triangles की बात कर रहे हैं, यहाँ पे similar का concept नहीं है. So let's find the ratio of areas of two triangles. This is a very important first property of this chapter. So you can see that there are two triangles in figure 1.1 and figure 1.2. So what was this property? You can see two triangles. In these two triangles, nothing is common. Means height दोनों का अलग है. You can make out the difference. And base is bigger, one is smaller. Okay. So in such type of triangles, when we take out the area, we know the area of triangle formula is half into base into height. So if we apply this formula for the first triangle, that is triangle ABC, then its base is BC and height is AD. Okay. Height AD है और base BC है. Similarly for the second triangle PQR, height is PS and base is QR. So you can make out the lengths of that base and height. So both are different. So when we take out the ratio of such triangles, okay, so when we take the ratio of such triangles, that is ratio of area of triangle ABC upon area of triangle PQR. तो ABC का रेशियो, ABC का फॉर्मूला लिखेंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AD, एंड PQR का लिखेंगे हाफ इंटू QR इंटू PS. QR बेस है और हाइट PS है. ओके तो इसमें जब हम कॉमन टर्म्स कैंसिल करेंगे तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ओनली हाफ इज कॉमन ऑफ दैट फॉर्मूला, सो दैट विल गेट कैंसल्ड. ओके ऊपर नीचे हाफ है वो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, BC इंटू AD एंड QR इंटू PS. So that is only what it is remaining. But what is that is nothing but base into height of one triangle and base into height of second triangle. So if we take areas of two triangles as A1 and A2, अगर ट्रायंगल के नाम नहीं दिए, ऐसे भी टाइप के सम्स हमने सॉल्व किए हैं जहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है. So A1 upon A2, area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be B1 into H1 upon B2 into H2. So hence the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of products of their bases and corresponding heights. ठीक है. So see students, ऐसे type of triangles में जहाँ पे कुछ भी common नहीं है, nothing is common, nor base is common nor height is common. In that case, the ratio of areas of triangles will be equal to the product of their bases and heights will be equal to the ratio of products of their bases and heights. Products means what? Multiplication. Okay, products means multiplication. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी जो हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में किया था और इसके ऊपर बेस्ड हमने सम्स भी किए थे. ओके सो आई कीप द स्क्रीन, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट तो पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये कब अप्लाई करना है, जब तुमको ट्रायंगल्स नॉर्मल दिए हैं और वहां पे बेस और हाइट कुछ भी कॉमन नहीं है. So this is ratios of areas of two triangles. So whenever you are using this property, then you are supposed to write in the bracket that ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of products of their corresponding bases and corresponding heights. Okay, so now let's move to the next slide.
सो यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स में हाइट कॉमन है, ओके, सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ओके। जैसे फर्स्ट केस में कुछ कॉमन नहीं था, हाइट हाइट अलग था, बेस अलग था, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हाइट कॉमन है, हो सकता है एक ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी दिया है, उसी के अंदर दो ट्रायंगल आपको दिख सकते हैं, ए बी डी एंड ए डी सी, ओके। या फिर देयर आर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, जैसे ये केस में दिया फिगर 1.3 एंड 1.4। सो यू कैन मेक आउट इन बोथ द केसेस द हाइट h इज कॉमन, तो दोनों में लेटर h यूज किया है, इसका मतलब क्या है, दे आर सेम। सपोज यहाँ पे हाइट 4 है तो वहाँ पे भी 4 ही होगा, okay. So when we take the ratio of such areas of triangles, so we can see area of triangle ABC upon area of triangle PQR. तो अगर हम पहला प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल ABC का बेस BC एंड हाइट AD, और सेकंड ट्रायंगल का बेस QR एंड हाइट PS, तो दोनों का हाइट इज H। मतलब अगर तुमको नंबर भी दिया रहेगा 4 4 तो वो कट हो जाएगा, इसलिए वी आर टेकिंग H. So we can cut the common terms. So what will be the ratio equal to the base? So very important students, whenever height is common, then the ratio of areas will be equal to the ratio of their corresponding bases. ठीक है, क्योंकि height अगर common है तो ratio will be equal to their base. So this is very important. So A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2. So this is the property, the ratio of areas of two triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases. ठीक है, तो हो सकता है दो अलग ट्रायंगल दिया हो सकता है एक ट्रायंगल के अंदर ही कॉमन हाइट है और यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते हो एंड इफ यू राइट बेस इनटू हाइट जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया, तो दैट इज आल्सो राइट, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो लिखते हैं बेस इनटू हाइट एंड दे विल कट द कॉमन टर्म्स, इवन दैट इज राइट, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी मिस्टेक्स नहीं होगा, जो लोग प्रॉपर्टी एकदम बायाट रख सकते हैं, इजी टू अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. They can directly write. Some students will write the entire formula, then they will cut the common terms. So that is also right. So any method with that gives you right answer is right. ठीक है, मेथड राइट है तो उनको मेथड को स्टेप्स को मार्क्स मिलेगा. So this was the first condition in which height was common. So when height was common, then the ratio of areas will be equal to their ratio of their bases. So what if in condition 2? So you can see in condition 2, if the bases of both triangles are equal, अभी bases common दिया है, equal means common. If bases are equal, then what should be the ratio of their areas? ठीक है, so you can look at the figure, triangle ACB and triangle APB. So दो triangle है, दोनों में base common है AB. ओके, अगर मैं ट्रायंगल ACB की बात करूँ तो बेस AB है, APB की बात करूँ जो अंदर छोटा ट्रायंगल है APB जो डॉटेड लाइन यूज किया है, सो अगर मैं उसकी बात करूँ देन दैट बेस इज AB. ओके, सो दोनों में ACB में और APB में बेस इज AB, बट हाइट है डिफरेंट, एक का हाइट H1 है, दूसरे का हाइट H2 है. सो इफ वी अप्लाई the formula for area of triangle ratio, then that is equal to the product of their bases and height. तो दोनों का बेस AB into height H1 और APB का बेस AB and height H2. तो AB will get cancelled. So what will get remaining? H1 upon H2. So what is this property? The ratio of areas of two triangles with equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights. Okay, so जब height common रहेगा तो ratio will be equal to base, जब base common होगा तो ratio will be equal to their corresponding height, जब कुछ भी common नहीं होगा तो product it will be equal to the product of their bases and heights. ठीक है, so हमेशा याद रखो बेस कॉमन है तो हाइट आएगा आंसर में, हाइट कॉमन है तो बेस आएगा. तो इसके अलावा हमने एक कंडीशन किया था, उसका एक्चुअली हमने सम सॉल्व किया था. So that sum we have solved. That property I have not mentioned here. तो मैंने तुमको बोला था एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो हमने फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 का.
एक ऐसा कंडीशन भी है जहाँ पे बेस एंड हाइट बोथ आर कॉमन. फॉर एग्जांपल इफ ट्रेपेजियम तुमको दिया है, एक ट्रेपेजियम तुमको दिया है, तो ट्रेपेजियम के ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और उसके अंदर अगर दो ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दैट ट्रेपेजियम, देन हाइट बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में हाइट हमेशा सेम होता है. तो दो ट्रायंगल्स का हाइट भी सेम होगा उसके अंदर और बेस भी जो ऑपोजिट साइड होगा वो भी सेम होगा. सब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, व्हेन बेस इज आल्सो सेम एंड हाइट इज आल्सो सेम, तो इसका एरिया भी सेम ही आएगा. ठीक है, अगर एक ट्रायंगल का बेस 8 है और हाइट 4 है, दूसरे का भी बेस 8 है और हाइट 4 है, then area of triangle answer will be same only. Okay, so all the common terms if you cancel, then what you will get, area of triangle 1 is equal to area of triangle 2. Okay, so in that case, when base and height both are common, तो common terms कट हो जाएंगे, तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा. रेशियो will be 1:1, means A1 is equal to A2, means triangle 1 का area will be equal to triangle 2 का area. Okay, so that property also we have studied. ठीक है, उसके बाद हमने एक important theorem किया था, that is basic proportionality theorem. Very important theorem of your chapter of your syllabus. First theorem of your chapter. So what is this theorem? इसको short form बोलते हैं BPT. इसका long form है basic proportionality theorem. So what does this theorem says? So every theorem you should by heart the statement. So what is this theorem? If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. Okay. So if a line is parallel to a side of a triangle, so you can see that the line L is parallel to side BC. ये दो क्या है, parallel है. Then the line divides the sides in the same proportion. तो ये लाइन L जो है वो साइड AB और AC को P और Q में, P and Q में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Okay, so that you can see line L is parallel to side BC, so that is given, and it is intersecting side AB and BC in points P and Q, so that you can see. So that is all we are writing in the given. So theorem के statement में कहीं पे भी triangle का नाम mention नहीं है, so we are supposed to write the name of the triangle and we have to assume all the conditions. So given में क्या लिखेंगे, in triangle ABC, line L is parallel to line BC, segment BC, and line L intersects AB at P, point P, and AC at point Q respectively. हमको क्या प्रूव करना है, AP upon AB is equal to AQ upon AC. So we have to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. मतलब ऐसे BPT थ्योरम यूज कर रहे हो तो ये ऐसे जाएगा. ओके, सो ये हमको प्रूव करना है. सो एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है. वी हैव टू जॉइन सेगमेंट PC एंड BQ. इसको जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है उसको हम जब भी ज्वाइन करते हैं या फिर हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम डॉटेड लाइन यूज करते हैं. सो व्हाट इज द प्रूफ? सो इन ट्रायंगल APQ एंड इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB. ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है, APQ एंड, सो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक APQ एंड ट्रायंगल PQB, दिस ट्रायंगल. ठीक है, सो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है तो दोनों में हाइट कॉमन है. ठीक है, हाइट कॉमन है. वो जो लाइन L है वो हाइट नहीं है, लेकिन अगर वो दो ट्रायंगल के लिए हम हाइट एज्यूम करके ड्रॉ करेंगे तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट सेम ही आएगा. ओके, सो वी आर एज्यूमिंग दैट द height is common. So when height is common, then ratio of areas will be equal to the ratio of the bases. So जब हम areas निकालेंगे, area of triangle APQ upon area of triangle PQB, proof का जो first statement है is equal to AP upon PB. तो AP upon PB कहाँ से आया? क्योंकि height are common.
ठीक है. So areas are proportionate to bases. So this statement. Now next we are taking which triangle? Triangle APQ and triangle PQC. So now we are taking triangle again this APQ and triangle PQC, this triangle. So these two triangles if you are taking, तो उसके जैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे भी हाइट इज कॉमन वी आर टू एज्यूम. सो रेशियो विल बी इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर बेसिस. तो यहाँ पे क्या आएगा AQ अपॉन QC आएगा क्योंकि हाइट कॉमन है. सो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस. तो ये दो स्टेटमेंट हो गए. नाउ सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB. ठीक है. अभी जो अंदर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अंदर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं PQB, this triangle, and PQC, so this triangle, so that you can see ये जो अंदर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, you can make out that figure is like of trapezium. तो ट्रेपेजियम के अगर प्रॉपर्टीज रिकॉल करेंगे, सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके. तो यहाँ पे लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, दैट इज ऑलरेडी गिवन. तो जब लाइन पैरेलल होता है तो उसके अंदर हाइट विल बी इक्वल. ठीक है. तो ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC में PQ कॉमन है. यू कैन सी दैट PQ इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. अब मैं खाली ये वाले ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ. तो ये जो दो ट्रायंगल है इसमें जो PQ है वो बेस हो जाता है. तो बेस विल बी कॉमन एंड हाइट इज ऑल्सो कॉमन बिकॉज दैट इज द लाइन्स आर पैरेलल. तो मतलब बेस भी कॉमन है, हाइट भी कॉमन है. तो रेशियो विल बी 1:1 मीन्स एरियाज ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल. ओके. So hence triangle PQB and PQC have equal heights. So this statement. Okay. तो मतलब क्या उसका एरिया विल बी सेम, क्योंकि तुम उसका एरिया निकालोगे तो कॉमन टर्म सब कट हो जाएगा. देन रेशियो ऑफ विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. तो PQB अगर PQC कॉमन है, इक्वल है, तो जहाँ पे PQB है तो वहां पे हम PQC लिख सकते हैं. ओके. तो अगर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में PQB के जगह पे PQC लिखा, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में APQ है और नीचे PQB है. तो PQB के जगह पे मैंने PQC लिखा. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 to 3 जो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उस हिसाब से वो देख के ऑब्जर्व करने के बाद वी कैन राइट AP मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल APB APQ अपॉन PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC जो सेकंड स्टेटमेंट है. मतलब क्या AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सो ये हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ऑब्जर्व करने के बाद हमारा कंक्लूजन ड्रॉ किया है. ओके. सो दिस वाज योर एक्चुअल BPT थ्योरम. तो आजकल थ्योरम भी जो होता है एक्टिविटी फॉर्म में आता है. मतलब जैसे तुमको आधा स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हाफ यू हैव टू कंप्लीट. कहीं पे रीजन नहीं लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे रीजन लिखा है एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, तो वहाँ पे तुमको ब्रैकेट दिया रहेगा, डॉटेड लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे. सो BPT थ्योरम. तो आजकल थ्योरम जो है पेपर्स में तुमको एक्टिविटी फॉर्म में आ रहा है. सो यू कैन एटलीस्ट टेक्स्ट बुक का ही है, जो ये टेक्स्ट बुक का ही पेज है हमारे, तो टेक्स्ट बुक का ही जो है वो ठीक से आप उसको प्रैक्टिस कर लो. अगर ट्रायंगल का नाम भी अलग आया तो यू कैन राइट बाय योर ओन. सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ जो स्टेप्स दिए हैं. तो तुमको एग्जाम में अगर पूछा भी तो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो दिस वाज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. तो BPT थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि लाइन पैरेलल रहना चाहिए. ओके. द लाइन शुड बी पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट शुड एंड दैट लाइन विल इंटरसेक्ट इनटू टू साइड्स एट 2 पॉइंट्स. ठीक है. मतलब जो लाइन L है वो AB को P में इंटरसेक्ट कर रहा है एंड AC को Q में इंटरसेक्ट कर रहा है.
So these two conditions are very important. तो तुमको सम में लाइन पैरेलल दिया है, तो means you should use VPT theorem only. So that is the important condition for this theorem. Okay, so ये theorem भी हमने रिवाइज कर लिया है. किसी को कोई भी डाउट होगा, so you can ask. So now we are actually entering into the concept of similarity. So see students, BPT theorem के सम्स तुमको है, लेकिन BPT theorem के जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, BPT theorem के एप्लीकेशंस है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं. यू हैव इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो ये दोनों अभी सिलेबस में से निकाल दिया है. ओके, सो हमको उसके ऊपर के सम्स भी निकाल दिए गए. सो वी हैव टू स्टडी बीपीटी थ्योरम एंड थ्योरम से रिलेटेड जो भी सम्स है वो सब हमको पढ़ने हैं. सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह सब देखते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे सिमिलर है. सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 जहाँ पे हमने ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ किए हैं. सो वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट 7 to 8 सम्स फ्रॉम दैट एक्सरसाइज. So whenever you want to prove that the two triangles are similar, अगर तुमको प्रूव करना है दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे हम लोग ने स्टैंडर्ड 7th और 8th में पढ़ा है इन चैप्टर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. तुमको अगर याद होगा तो 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़े थे, जैसे ASA, SAS, ट्रिपल S, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. तो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 4 अलग टाइप के टेस्ट पढ़े थे. यहाँ पे भी सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए वी हैव डिफरेंट टेस्ट. ओके, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए वी हैव डिफरेंट टेस्ट. सो व्हाट आर द टेस्ट? ट्रिपल ए और डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. So this was the very easy to identify. This test is very easy to identify and in most cases AA टेस्ट ही तुमको आता है. तो जैसे हमने सम्स भी किए हैं, तो हमने 8 से 9 सम्स किए, उसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वी आर यूजिंग डबल ए टेस्ट. ठीक है, दो एंगल भी मिला तो भी आपको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ना. अगर हम SAS टेस्ट से प्रूव करेंगे साइड एंगल साइड से, तो हमको साइड आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ता है और एक साइड, तो 3 स्टेप्स. तो यहाँ पे तो डबल ए टेस्ट में तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो यू कैन सिंपली आंखें बंद करके लिख सकते हो दैट इज ए टेस्ट. ओके, तो इसके ऊपर हमने सम्स भी सॉल्व किए. एक्सरसाइज के 2-3 सम्स ऐसे सॉल्व किए जहाँ पे वी हैव आइडेंटिफाइड बाय विच टाइप ऑफ टेस्ट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना, लिखना, और उसको बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर, लाइक AA टेस्ट, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, तो ब्रैकेट में लिखना, उसको भी 1 मार्क्स है. ओके, सो just revising the concept, this already we have done in standard 9. बट अगर तुम भूल चुके हो या फिर लास्ट सेशन हमने मिस किया रहेगा, so you can see that there are different types of tests through which we can prove that the triangles are similar. So triple A test means angle angle angle, or double A test means angle angle. So this means when two angles of a triangle are congruent to the corresponding sides of another triangle, then this condition is sufficient to prove that the triangles are similar. Okay, ये हो गया फर्स्ट टेस्ट. नाउ सेकंड टेस्ट, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. SAS means side angles angle test, side angle side. So यहाँ पे you can see in triangle, so here you can see in triangle KLM and PST. तो यहाँ पे KL दिया है 1, यहाँ पे दिया है RS दिया है 1.5. So 1/1.5. तो डेसिमल निकाल देंगे तो 10/15 हो जाएगा. 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 5, 3 जा हो जाएगा, तो 2/3 आएगा. सो KL/RS विल बी 2/3 और LM/ST ये ऑलरेडी 2/3. तो ऐसे एक टाइप का सम हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 में किया था. ओके, यहाँ पे हमने टेस्ट आइडेंटिफाई किया था.
सो दो साइड्स रेशियो में है, मतलब दोनों का रेशियो सेम आ रहा है 2/3 एंड वन एंगल इज कॉमन, एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, so that is given. तो जब भी सेम सिंबल यूज किया जाता है, जैसे एंगल L और एंगल S के लिए यूज किया है, so whenever the symbol is same, that means what, they are congruent. Okay, so that is given. So ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल में जहाँ पे दो साइड्स और बीच में एक एंगल कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है, then such triangles are similar by SAS test. Okay. So last test to prove that the triangles are similar, SSS test, मतलब तीनों साइड्स तुमको प्रोपोर्शन में मिलेंगे. So यहाँ पे you can see PQR and XYZ. तो अगर तुमको इस ऐसे केस में नंबर्स दिए है उसके साइड्स के, तो तुम उसका रेशियो निकालोगे तो तीनों के रेशियो सेम आएगा. सपोज PQ 3 दिया है, YZ PQ को करस्पॉन्डिंग अगर YZ है, if PQ is 4, YZ is 8, then 4/8 is 1/2. तो वैसे ही दूसरे साइड्स का भी तुमको रेशियो निकालोगे, कट करोगे तो तुमको रेडियस नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2. So in such case, when all the three sides are in ratio, means the ratio comes same, then the triangles are similar by SSS test. So in this case, the triangles are similar by SSS test. Means PQR is similar to triangle XYZ. तो नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दी है, मतलब कोई भी ट्रायंगल ABC जो है is similar to triangle ABC, means one triangle is similar to itself, so that is reflexivity. If triangle ABC is similar to DEF, then DEF is also similar to ABC. मतलब if one is congruent to similar to 2, then 2 is similar to 1, vice versa. Okay, so that is called symmetry. And third, if one triangle is similar to second and second is similar to third, then first and third will be same. तो यहाँ पे देखो ABC अगर DEF को similar है और DEF GHI को similar है, लेकिन DEF ABC को भी similar है, मतलब क्या ABC और ABC और GHI will be similar. So this is called transitivity test. Okay, so these are different properties. ठीक है, तो इतना डिटेल पूछते नहीं है, लेकिन हमको ये टर्म्स पता रहने चाहिए, इसलिए मैंने तुमको रिवाइज कराया. So I hope you understood here. So हमने थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स किया था. ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर ये एक ही थ्योरम है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पूरे चैप्टर में. सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर ये एक ही थ्योरम है. एक तो तुमको टेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर, और एक सेकंड थ्योरम अप्लाई करना है अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया है. ओके, व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? When two triangles are similar, then the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. ठीक है, मतलब अगर एक ट्रायंगल सिमिलर दिया है दूसरे को, ओके, देन उसके जो साइड्स होते हैं, तो दैट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बट द साइड्स आर प्रोपोर्शन, उसके स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. बट व्हेन द ट्रायंगल्स आर गिवन सिमिलर, सो उसका एरिया का रेशियो निकालेंगे. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, so that will be equal to BC square upon QR square, AB square upon PQ square, AC square upon PR square, AD square upon PS square. So जो भी हाइट है या मीडियन है वो भी स्क्वायर में आप लिख सकते हैं. ठीक है, so this is the theorem. Means what? A1 upon A2 means area 1 upon area 2 is equal to S1 square upon S2 square. Okay, so this is the theorem. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है? दो ट्रायंगल्स दिया है सिमिलर. तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ये ट्रायंगल्स होता है वो सिमिलर होता है. और सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमने किया था वहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्मल ट्रायंगल्स की बात की थी और उसका रेशियो ऑफ एरियाज दिखाना था. लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है. यहाँ पे कंडीशन क्या है? द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ऐसे सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो निकालेंगे एरिया का, देन दैट विल बी इक्वल टू द
रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स. ठीक है, सो स्टेटमेंट वापस देख लेते हैं. सो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो ये थ्योरम हमारे टेक्स्ट बुक का ही स्क्रीनशॉट है. सो मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक को छोड़ के, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सेट भी छोड़ के तुमको बाहर से कुछ नहीं पूछते. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लेन टीचर ये सम बाहर से आया, टीचर ये टेक्स्ट बुक में नहीं था. तो इट इज नॉट लाइक दैट, दैट सम इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल में हो सकता है, तुम्हारे एक्सरसाइज में से नहीं होगा तो प्रॉब्लम सेट में से हो सकता है. ओके, सो नथिंग कम्स आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक. थोड़ा नंबर चेंज होगा लेकिन कंसेप्ट के बाहर का कुछ नहीं आता है. सो दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज इंसिस्टिंग students to read the textbook to understand what is given in the textbook. So whether it is a math subject or whether it is science subject or whether it is any other subject, you should know what is given in the textbook. Theorems जो है मोस्टली टेक्स्ट बुक के ही तुमको बाय हार्ट करना है, स्टेप्स तुमको देखने हैं, वही तुमको एक्टिविटी में आ रहा है. तो फिर तुमको खुद को लिखने को भी आएगा तो टेक्स्ट बुक से रेफर करोगे स्टेप्स, so that will be very easy. क्योंकि टेक्स्ट बुक तो हम रोज देखते हैं, we see the textbook every day, so it becomes very easy, you know, to practice that. इसलिए टेक्स्ट बुक पे एम्फसाइज करो, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करो. टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं पूछते. सो ये थ्योरम है जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, उसी का प्रूफ है ये. सो थ्योरम अभी हमने देखा है क्या है. इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratio will be equal to their squares of their corresponding sides. तो यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR और AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR. हमको प्रूव करना है area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square, BC square upon QR square and AC square upon PR square. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक ऑलरेडी दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो बस एक दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू करने के बाद वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन. सो थ्योरम इज नॉट दैट टू हार्ड. तो प्रूफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. तो ये BC इंटू AD और QR PS कहाँ से आया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका बेस BC है एंड हाइट AD है, सो दैट इज BC इंटू AD. तो ये BC इंटू AD कहाँ से आया, वहाँ से आया. नेक्स्ट, तो उसको खाली सेपरेट किया है BC अपॉन QR इज इंटू AD अपॉन PS. सो जब टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो वी कैन सेपरेट. ओके, लेकिन अगर नंबर प्लस या माइनस में होगा वहाँ पे देन डिफरेंट, और ऊपर न्यूमरेटर में प्लस साइन है तो तुमको डिनोमिनेटर कॉमन लेना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज डिफरेंस. सो जब साइन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यू कैन राइट हाउएवर यू वांट. सो यहाँ पे सेकंड स्टेप में ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ABD यू कैन सी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQS. तो जैसे यहाँ पे नाम दिया वैसे वहाँ पे नाम दिया. सो यहाँ पे B जो है यू कैन सी दिस B and Q. These are congruent. Why they are congruent? Because it is given. Same symbol है मतलब they are given. They are congruent. And ADB and PSQ are 90 degree because they are perpendicular. तो ये दो ट्रायंगल में हमको दो एंगल्स मिल गए. So we can write that the triangles are similar. ठीक है, so according to A test, triangle ABD is similar to triangle PQS. ये स्टेटमेंट. तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन राइट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हमको जो रेशियो चाहिए वो हम ले सकते हैं AD अपॉन PS. ओके, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. बट ABC is similar to PQR. ये तो गिवन है, दैट इज गिवन. तो उसका क्या आएगा, रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR.
ओके अभी स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्व करो, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, और यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर है। जब दोनों अलग अलग को कॉन्ग्रुएंट इक्वल है तो तीनों इक्वल हो जाता है। ओके तो जब दोनों इक्वल है, जब एक ही रेशो दोनों को इक्वल है तो दैट टाइम वो इक्वल हो जाता है। सो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एस को भी इक्वल है एंड ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर को भी इक्वल है। ठीक है तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, जो सबसे पहले लिखा गया है, तो बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ए डी अपॉन पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो मतलब मैं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकती हूँ, वैसे ही ए डी अपॉन पी एस की जगह पे ए डी अपॉन पी एस की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, दोनों न्यूमरेटर ए बी है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 2 and 3 we can write that the area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC square upon QR square, AC square upon PR square, BC square upon QR square। ठीक है तो यहाँ पे एक रेशियो हमने प्रूव किया तो बाकी के भी प्रूव कर सकते हैं। ओके सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स साइड्स आल्सो। ठीक है किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। So this was the theorem। और इसका प्रॉपर्टी क्या है, a1 upon a2 is equal to s1 square upon s2 square, means ratio of areas of similar triangles is equal to the squares of their is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है so many students confused between this theorem and the first property what we studied। ये जो theorem है और जो हमने first property किया था इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है। ठीक है यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है इसलिए उसका रेशियो विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। लेकिन जब ट्रायंगल सिमिलर दिया है, व्हेन द ट्रायंगल इज गिवन सिमिलर टू यू, देन इट इज द रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स। ओके so with this I'm ending with this today's revision। if you have any doubt, ठीक है students, if you have any doubt please ask। if you have any doubt then please you can ask, because tomorrow I'm going to conduct an online test। जैसे हमने mensuration के लिए online test conduct किया था, the response was very good, you were solving the sums, many students gave the answer, many students noted down the question and after that they given the answer at the end of the session। so ऐसा ही टाइप का टेस्ट होगा, 1-2 मार्क्स के सम्स होंगे, तो तुमको टेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, तुमको हाइट कॉमन है बेस कॉमन है उसके ऊपर से तुमको सम सॉल्व करना होगा, 1-1 मार्क। एमसीक्यू में तुमको ऑप्शन दिया होगा। ओके सो ऑल सॉर्ट ऑफ सच क्वेश्चंस ओनली विल बी देयर, और ज्यादा करके क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉब्लम सेट से मैं उठाने वाली। ठीक है सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई गेव यू 11 to 12 क्वेश्चंस एंड 6 to 7 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। ठीक है सो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम सेट को सॉल्व ही नहीं करते, हाथ ही नहीं लगाते। सो डोंट डू लाइक दैट। प्रॉब्लम सेट के सम्स आर आल्सो वेरी इजी, जो हमने एक्सरसाइज में किया है उसी टाइप में रहता है, थोड़ा अलग होता है बट इट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट। सो टुमारो आई एम गोइंग टू कंडक्ट एन ऑनलाइन टेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट यू ऑल बी देयर। आंसर कर सकते हैं हैंड रेज करके, तुमको क्वेश्चन होगा ऑप्शंस दिए जाएंगे या फिर क्वेश्चन होगा तुमको सॉल्व करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था टेस्ट में, इफ आई एम कंडक्टिंग द टेस्ट
if you are raising the hand और आंसर अगर बताना है तो it is very important to give the explanation. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को नहीं समझा है तो friends can make explain, so that also can happen. So कल के टेस्ट के लिए बी प्रेजेंट, एंड आज कुछ भी अगर डाउट है ये चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो ये चैप्टर में जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस निकाला गया था वो छोड़ के मैंने तुमको सब पढ़ा दिया गया. ओके, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सम्स जो तुमको होमवर्क एज ए प्रैक्टिस दिए थे, दैट वेयर ऑफ द सेम कंसेप्ट, इसलिए दैट वाज गिवन एज अ होमवर्क. सो इफ यू हैव एनी डाउट. Hello, ma'am. यस, I am having doubt in problem set 1. ओके, प्रॉब्लम सेट में डाउट है. Yes, question number 13. और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो क्वेश्चन में? In figure 1.81, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Angle A is equal to 90 degree. Then prove that DE square is equal to BD into EC. ओके, तो ये जो टाइप का सम है ना, तो हमने ऐसा टाइप का सम हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 में किया है. यू रिमेम्बर डी इंटू, तो एक ट्रायंगल से एक्सटेंड किया हुआ था, स्क्वायर पैरेललोग्राम से ट्रायंगल एक्सटेंड किया गया था. सो यू फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द टू ट्रायंगल्स. ऐसे ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर दिया है, मीन्स डी विल कम 2 टाइम्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट टू ट्रायंगल्स. इसमें डी एक में रेशियो निकालोगे तो न्यूमरेटर में आएगा और एक में डिनोमिनेटर में आएगा, सो दैट यू कैन टेक दैट स्क्वायर. ठीक है, सो ट्राई सॉल्विंग दिस सम बाय अप्लाइंग दिस लॉजिक जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में किए हैं, जो लास्ट के 2-3 सम्स थे जहाँ पे हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया था. ओके, तो इसमें भी वैसा ही है, तो थोड़ा और स्ट्रेस दो, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो और उसको सिमिलर प्रूव करो. सो वंस यू प्रूव दैट द सिमिलर, देन यू विल राइट द रेशियो. रेशियो लिखते टाइम ध्यान रखना है कि डी जो है, मतलब जो स्क्वायर है वो एक साइड न्यूमरेटर में रहेगा, इज इक्वल टू के दूसरे साइड में डिनोमिनेटर में होगा. ओके ओके, सो ट्राई सॉल्विंग, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू, देन वी आर मीटिंग टुमारो. ओके, तो कल तुम मुझे पूछ सकते हो. Okay, ma'am. So Thank you. that is very good that you are solving the problem set. Almost question number 13 is almost more than half sums you are done. So very Yes, good, ma'am. very good, very good. Thanks, ma'am. Yeah. So be ready for tomorrow's test. If anybody else want to ask anything, then you can please ask. मीटिंग चालू है. ठीक है, Pranita also want to ask something. Yes, Pranita. Hello. Yes, students, if you're having doubts, raise your hands. Okay, तो आई डोंट थिंक यश नलावड़े. ठीक है, जो हैंड रेस कर, I think no one is raising their hand. yeah, It's okay. Yeah, ma'am, no issue. We'll wind Tomorrow up. there is a test. Yeah, okay. Thank you, Neha ma'am. Thank you very much. Thank you, students. As ma'am has told you, tomorrow you are having your test. So after the lectures, you'll practice all the sums. Objective type test it will be. So practice almost first objectives so that you can score good marks and you can give the good result. Any doubts still you can ask.